ओके चैतन्य, तो चैतन्य कीपिंग क्वाइट एज यू हैव आस्क्ड, पेब्लो नरूडा, ठीक है, बहुत बार ये पोएम बोर्ड्स में आई हुई है, वन ऑफ द हिट पोएम्स ऑफ दिस बुक। और पैब्लो नरूडा ऑब्वियसली हमें पता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, नोबेल प्राइज़ भी उन्होंने जीता है 1971 में। एंड इसमें इन्होंने जो ज़्यादातर बात करी है, नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बींग्स। तो ऑब्वियसली जैसे हम पहले से ही डिस्कस करते आ रहे हैं, और इनफैक्ट जो पीछे हमने पोएम डाली थी, तो माई मदर एट 66, तो काफ़ी बच्चों ने देखी और बहुत अच्छा लगा उनको, कमेंट्स भी पढ़े होंगे कुछ कुछ। Yes, mostly. ओके, सो व्हाट वील डू इज़ हम वैसे ही करते हैं, ठीक है, योर अंडरस्टैंडिंग एंड माई Sure. अंडरस्टैंडिंग एज ऑफ नाउ। ठीक है, क्योंकि दो बच्चों ने अभी और ज्वाइन करना है चैतन्य, क्योंकि थोड़ा सा बढ़ता ही जाएगा। तो फिलहाल जो हम कर रहे हैं वो तो हम लोग करते चले। सो कीपिंग क्वाइट है, छोटी सी पोएम है। सो पोएम नहीं पढ़ते हैं, वट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग हम वैसे शुरू करते हैं, देन आई एक्सप्लेन माइंड। ठीक है, तो दो व्यू पॉइंट्स, दो नज़रिए, अच्छा रहेगा क्या? सो या प्लीज़ Sure, sir. कैरी ऑन या। So start, I would like to start with this thing that इसके अंदर जो main idea जो address करा गया है, that is introspection and retrospection. Starting से ही in like any country, the whole world, even currently, everybody is living in a capitalist world, capitalist society. They don't have time even for their own selves to think about their own actions. वो कर क्या रहे हैं, how their actions are going to affect not only their own selves but others as well. इसी के साथ ही साथ they are also living a life of total destruction. Single mindedness is more into human beings as compared to a very broad mind, and moreover they are like self-centered. The character of self-centered is prominently highlighted moreover in each and every human these days. So यहाँ पे Pablo Neruda is highlighting some of the solutions which a person can apply. Actually, the whole humanity should apply it in order to have more peace and tranquility in the country as well as the nation. उसका जो पहला idea है, that is that everybody should keep quiet, should keep like maintain some silence in order to prevail tranquility, peace, security and positivity in the nation. इसका जो मेन इंटेंशन है इस चीज को, इस नरेटिव को सारे के सारे लोगों के अंदर या मतलब हाँ लाइक जनरल पब्लिक में स्प्रेड करने का, दैट्स प्राइमरीली सेंटर्ड अराउंड दैट इट विल लेड टू द प्रमोशन ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड as well as universal tranquility and peace in the whole nation. Uske baad he is highlighting, giving actually some examples such as the person who is working with the salt, working with the sea and all the corrosive elements. Uske paas like itna time nahi hai that he can think about the actions, the way he is working, or think about the harm that he has inflicted just because of working with that corrosive element, salt. Uske baad he is even referring to all the people who are actually fighting. He is referring to them in this sense, basically making an appeal to them कि you should also keep like maintain silence for around about 12 seconds so that um, universal brotherhood, universal understanding between two countries, two quarrelsome nation would come eventually come to an end. उसी के बाद they are like coming ahead, they are also highlighting the aspect of green wars. So that green war is any human being, whosoever is fighting, whosoever is using those elements, those things which are basically um, placing a harm, creating a harm towards the environment, towards the flora and fauna of the world at large. उसी के लिए he is referring that we all, each and every one, including the soldiers, they should not use biological or chemical weapons, as they would end up taking the lives of many, destruction at a very large level significantly वो होएगा ही होएगा. It's something which cannot be um, like we cannot turn a blind eye towards it, क्योंकि that's something which will definitely gonna happen if any war would take place. और उसके बाद जो लास्ट का इसका पार्ट है, that is he's telling that how we can learn from nature even in apparent stillness something can be defined as something like jahan pe, even if like there are different summer, like summer winter season, different seasons,
और एक सीजन से दूसरे सीजन में जब जो ट्रांजिशन पीरियड होता है, इवन इन दैट पीरियड वी कैन सी दैट द नेचर इज सर्वाइविंग। ऊपर का उनका सरफेस जो है नेचर का, दैट सॉइल एंड एवरीथिंग, द अपर लेयर व्हिच इज द विजिबल वन, मे बी वहां पर इट कैन बी परसीव्ड कि इट्स टोटली डेड, इट्स नॉट हैविंग लाइफ, इट्स लाइफलेस। बट उसी के ही अंदर देयर इज apparent life, there is apparent positivity, as well as the earth is kicking, it's vibrant and alive. So with this idea, he is also telling that even in apparent silence, we can ensure that it would not lead to the eventual death of the humanity. क्योंकि इसका जो आइडिया है साइलेंस का, that is not total silence. It should not be confused with something that's total silence, क्योंकि वो तब होगी जब एक बारी, like supposingly there is a war खत्म होने के बाद when nobody will be left, victories without survivors, उस situation में the humanity's face would be emanated from the earth. उस time एक strange silenceness आएगी. वो silenceness should not be mixed with what Pablo Neruda is asserting his point of. उसकी जो silence है, that's just for retrospection and introspection, ताकि positivity और brotherhood पूरे के पूरे world में nation at large implement हो पाए. And whether on his side it's more of a negative silence which will be there persisting just because of the war. ओके, बढ़िया। सही है। सो या योर व्यू पॉइंट नहीं, अच्छा ठीक है, चैतन्य बहुत बढ़िया बोला। और ऑब्वियसली ये पोएम इसी डायरेक्शन में हमें लेके जाती है। और स्टार्टिंग करने से पहले सो आई वुड लाइक टू कोट समथिंग। तो बेसिकली कीपिंग क्वाइट जब भी मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो मैं एक चीज़ बहुत बोलता हूँ। तो कहते हैं कि जैसे जब सबसे ज़्यादा शांत होते हैं हम जब सबसे ज़्यादा शांत होते हैं हम, इंट्रोस्पेक्शन की जो बात करें, तब सबसे ज़्यादा शोर होता है, एंड दैट शोर इज़ फ्रॉम विद इन। ठीक है, क्योंकि आप बाहर की जो जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं तो उसके लिए जैसे लोग क्या करते हैं, जनरली थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी का माध्यम लेते हैं, या फिर जो डायरेक्शन है उनका मेडिटेशन करते हैं। तो दैट एट दैट पॉइंट, ठीक है, पीपल जो है वो लोग शांत हो जाते हैं, एंड वहाँ से फिर इंटरनल शोर आपका बाहर आता है। दे रियलाइज वट आई एम डूइंग, वट ही इज़ डूइंग, वट ही शी इज़ डूइंग, वट आई एम अप टू, सो ऑन, जो कि हम लोग बात कर रहे होते हैं। स्कीपिंग क्वाइट भी इसी तरीके का है। तो ऑब्वियसली यू हैव मेंशन, तो यहाँ पे जो बात बार बार रिपीट कर रहा था, तो ही इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट टोटल इन एक्टिविटी। ठीक है, टोटल इन एक्टिविटी का मतलब होता है डेथ। ठीक है, डेथ, एंड ही इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट डेथ, so he is taking take some time out, he's talking he take some time out, talk to yourself, introspect, who am I, what am I, क्या हूँ, क्या करना चाहते हैं, एंड देयर इज सोसाइटी एट लार्ज, वी आर ऑलरेडी क्रिएटिंग सो मच हार्म फॉर द सोसाइटी, हाउ कैन वी पे बैक, हाउ कैन वी कॉम्पनसेट, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे आती है। एंड टू द पॉइंट, डायरेक्ट पोएम है, छोटी सी पोएम है, बट इट हैज़ अ डीप मीनिंग फॉर आवर सोसाइटी, क्योंकि बहुत पुरानी काफ़ी पुराने टाइम पे लिखी हुई है, बिकॉज पैब्लो नेरुदा 1904 से 1973 तक ही रहे थे, उसके बीच में इन्होंने लिखा हुआ है। सो वील स्टार्ट विद द पोएम. So he says that now we will count to 12 and we will all keep still. For once on the face of the earth, let's not speak any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. तो count to 12 इन्होंने जैसे बहुत सारे वर्जन्स हैं, एक्चुअल काउंटिंग है, प्लस लोगों ने जैसे जो पढ़ा रहे होते हैं और वैसे भी ये बोलते हैं कि जो 12 घंटे हैं हमारे घड़ी के, ठीक है, वो भी इन्होंने बोला कि चलो लेट्स काउंट टिल 12 एंड हम लोग रुक जाते हैं, विल नॉट डू एनीथिंग। एंड कहता है एक बार तो ऐसा करके देखिए इस धरती पे कि हम कुछ बोले ना, ठीक है, 1 सेकंड के लिए रुको, अपने हाथ पैर कुछ मूव मत करो, ठीक है। तो ऑब्वियसली इट्स ट्राइंग टू से कि चलो हाँ ये डेथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट इट्स नॉट लाइक डेथ। तो कहते हैं इट वुड बी एन एक्सॉटिक मोमेंट, without rush, without engines, we would all be together in a sudden stillness. So that actually happens. अगर इसको मैं recall करें, so what I realized in during corona times, जब लॉकडाउन लगा था मार्च 22 onwards, ठीक है, तो we felt like this actually. I तो personally felt like this. सब चीज़ें रुकी हुई थी, सब शांत था, सड़कें खाली थी, घर पे बैठे थे, काम वाम नहीं था, ऑब्वियसली पैसे का टेंशन तो रहता ही है, बट मेरे लिए इट वॉज एन एक्जॉटिक मोमेंट। कोई भागा दौड़ी नहीं थी, कोई शोर शराबा, ट्रेनें, रेल, मेट्रो, एरोप्लेन्स कुछ नहीं चल रहे थे, हम सब इकट्ठे थे इन अ सडन स्ट्रेंजर। आसमान साफ़ हो गया था, वी वर एबल टू सी माउंटेन्स, फार माउंटेन्स, एयर क्लियर था,
पोल्यूशन नहीं था, ये सब चीज़ें भी यहाँ पे रेफ़र करी जा रही हैं। तो दिस आई कैन ऑब्वियसली पैराफ्रेज की इट वुड बी एन एक्सॉटिक मोमेंट, इट वाज एन एक्सॉटिक मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए बोला किस लिए, तो एक्चुअली इट हैपेंड फिशरमैन इन द कोल्ड सी, फिशिंग करने कोई नहीं जा रहा था एक्चुअली में, वुड नॉट हार्म फिशेस, तो जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट था एक्चुअली में हमारा रिप्लेनिश हो गया था। मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, तो उसके हाथ ठीक हो गए थे नेचुरली, सब अपना नेचुरल इवॉल्वर। इवन फैक्ट लोगों ने कई पोस्ट भी शेयर कर रहे थे कि ओजोन लेयर स्टार्टेड हीलिंग इटसेल्फ, ठीक है। तो दिस कुड बी वन ऑफ द एग्जाम्पल। तो वो अपने हाथों को देखेगा तो हाथ भी जो है उसके ठीक है। एंड दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, ठीक है, तो लाइक ग्रीन वॉर्स इज़ एक्चुअली में जो आपने भी मेंशन किया कि डिफॉरेस्टेशन है, पेड़ कटे जा रहे हैं, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, और ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द लोग जो हम लोग यहाँ पे कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, ठीक है। दे प्रिपेयर फॉर ग्रीन वॉर्स, वॉर विद गैस, वॉर्स विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। तो लेट्स कहते हैं कि लेट्स गेट टुगेदर, लेट्स वॉक हैंड इन हैंड्स। ये सब चीज़ें हम जो लोग कर रहे हैं सब रुक जाओ। साफ़ सुथरे वाइट रिप्रेजेंट किया जाता है क्लीन क्लोथ्स यहाँ पे, कि पीसफुल एनवायरनमेंट में रहे, पीस की तरफ आगे बढ़े, छाँव की तरफ बढ़े। बिकॉज यो आप लोग ऑलरेडी जैसे कहते हैं, आप देखो यहाँ पे बड़ा एक आयरॉनिकल है, ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। तो हम लोग अंधकार में नहीं जाना चाहते, पर ये कह रहे हैं इन सब चीज़ों से हटकर आप ठंडक में जाओ, अंधकार में थोड़ा सा, शेड में थोड़ा सा जाओ, एंड कुछ मत करो, जस्ट रिलैक्स, थिंक अबाउट योर सेल्फ, थिंक अबाउट सोसाइटी, पहले अपने बारे में फिर सोसाइटी के बारे में। सो वट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज, कहते हैं। पर मैं इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ कन्फ्यूज़ मत करना। दिस मीन्स टोटल, ये इसका मतलब ये नहीं है, दिस डज नॉट मीन टोटल इनएक्टिविटी। लाइफ इज़ वट इज़ अबाउट, ठीक है। तो लाइफ क्या है, लाइफ को जीना है। ये जो दिए गए हैं कुछ पल हमें, जो कुछ भी मोमेंट्स हमें दिए गए, इसको हमें अच्छे से जीना है जितना भी हमें दिया गया है, ठीक है। तो लाइक लास्ट मंथ ओनली वी हैड सम लाइक आवर फ्रेंड ग्रुप सम हैड इश्यूज़। तो मेरे एक फ्रेंड जो है सॉर्ट आउट करने के लिए घर पे आया, तो वही बोलता है कि ना चलो ठीक है, फैमिली है, रिलेशंस हैं, बहुत सारी चीज़ें, फ्रेंड्स हैं, और कहते हैं सब जगह बिजी हो जाते हैं, एंड वट एवर इज लेफ्ट क्या रह जाता है सामने, हमारे काम रह जाता है। तो ही इज़ ऑल्सो एन एजुकेटर, गुड़गांव में वो पढ़ा रहा होता है 12th क्लास को ही पढ़ाता है वो भी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज़। तो उसने ये बोला कि हमारे पास एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी, कि जो बच्चे आते हैं हमारे पास, ठीक है, और तो कोई हमसे शायद एक्सपेक्ट नहीं करता, पर ये बच्चे बहुत एक्सपेक्ट करते हैं, तो इनको हम अपना जितना 100% दे पाए हम दे पाए, ठीक है। तो लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट, कि ऐसा ही है, इनएक्टिव मरना नहीं है, ठीक है, ज़िंदगी नहीं गंवानी है, पर जितना अपना 100% खुशी दे पाए, सुख दे पाए, वो सब हम लोग दे पाए। तो ये कहता है वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, कि मुझे वो लोडिंग देख रहे हैं वो कर करके, जैसे वो डेथ कैंप्स में हुआ था, नाजीज डेथ कैंप में ट्रेनें भर भर के जा रही थी, ट्रक्स भर भर के जा रहे थे, मुझे वैसा नहीं चाहिए। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग। तो कहता है सिंगल माइंडेडली, इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, कि चलो सिंगल माइंडेडली बैठे, सोचे कि हमें कुछ नहीं करना है। इट्स नॉट अबाउट कि फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, बट रियलाइज कि हमें कुछ नहीं करना है। एंड परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ। तो लोगों को शायद ये रियलाइज़ हुआ कि छोटी सी खामोशी ज़रूर है, क्या हमें जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, शायद हो सकता है। क्या ये सैडनेस जो है, अलग अलग व्यूज़ हैं कि क्या ये हमें सैडनेस है अपने बारे में हमें अंडरस्टैंड करने में मजबूर करेगा, या एक्चुअली में हमें ये बताएगा। एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ, कि हम क्या शायद उसमें ये भी सोचेंगे कि हम मर सकते हैं, शायद हम ऐसा ना बोले, पर हम शायद हमें खुद ऐसा लग रहा हो। सो परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, कहते हैं ये सीखना है, अगर ये रुकना सीखना है, ठहरना सीखना है, और साथ के साथ ये अपने आप को ग्रो करना सीखना है, तो कहता है अर्थ इज़ द बेटर एग्जाम्पल, अर्थ इज़ अ गुड टीचर एज वेन एवरी थिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। कहता है हमें सब लग रहा होता है कि एवरी थिंग इज सीम्स डेड, बट लेटर ऑन पता चलता है कि सब चीज़ें तो लाइव है। तो ऑब्वियसली हम लोग, मतलब दीज आर द फिनोमिनाज विच आर हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख सकते। अर्थ इज़ मूविंग, है ना, 24 आवर्स डे चलता रहता है, चलता रहता है, चलता है। दिस इज़ अ मिरेकल, हम लोग देख रहे होते हैं, बट हम लोग रुके हुए हैं, हम लोग स्टिल हैं, ठीक है। तो एक तरफ वो जो चीज़ चल रही है, हम रुके हुए हैं, तो डेड और अलाइव का कॉन्सेप्ट भी एक तरीके से यहाँ पे देखा जाता है। सो नाउ दैट इज़ वाई से नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, ठीक है। तो अब इसलिए आप 11 तक, मैं 12 तक गिनता हूँ, आप रुक जाओ और मैं चला जाऊँगा, ठीक है। और जैसे एक ऊपर लाइन अर्थ का ये भी बोला है, तो जैसे अभी मैं पीछे कोट भी पढ़ रहा था, तो उसमें उन्होंने मेंशन किया कि अर्थ जो है रीबॉर्न कब हो सकती है, कह रहे सब ख़त्म कर दो, अर्थ विल स्टार्ट अगेन,
ठीक है, सब खत्म कर दो, सब जला दो, सब खत्म कर दो, तो अब दोबारा अर्थ अपने आप को जैसी थी वो वैसे ही अपने आप को बना लेगी। तो एक पॉइंट यहाँ पे भी अर्थ के जो है एग्जाम्पल की तरह हमें समझ सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में इसने ये बोला कंक्लूजन कि आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट, आई विल गो एंड आई विल गो। ठीक है, तो ये जो है पूरी पोएम थी जो इन्होंने बताई, वो है कीपिंग क्वाइट। ठीक है, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? अब क्लियर है? कोई डाउट इसमें चैतन्य? नो सर। ओके, ठीक है जी, ठीक है। इसका भी मेरे पास वो स्टैंजास के क्वेश्चंस तो नहीं है, बट आई विल सेंड इट टू यू। ठीक है, तो वो हम लोग फिर बाद में डिस्कस कर लेंगे। दूसरी कोई और पोएम भी करनी है? सर